Question hour, question number 61. Has the question been raised? Kiska question? 61. Let the answer be given. A statement is laid on the table of the House. Supplementaries? Yes, Mr. Rajiv Chanchik. Sir, thank you, sir. May I respectfully point out to the Minister that in the Annexure C, where she has talked about $14 billion as FDI into the manufacturing or Make in India sector, 50% of that... She can't hear. So can you hear me now? Can you hear me now? Please continue. Yeah, may I draw the attention to of the Minister to Annexure C, where she has talked about $14 billion under the Make in India program, that over 50% of these are not related to manufacturing, unless somebody has considered trading, services, hotels, education and consultancy services manufacturing. Could she kindly comment on the fact that these have been included in Make in India? Sir, with due respects, I would like the question to be repeated. I couldn't completely hear him. Please ask the question again. Sir, the first time I've got attempts at two questions, sir. May I draw the attention of the Honourable Minister to Annexure C of her answer, which talks about $14 billion in FDI under the Make in India program, which essentially consists of more than 50% of sectors not related to manufacturing. So could she kindly comment on why these have been included under Make in India when these are clearly nothing to do with manufacturing? Make in India is definitely an initiative where we are trying to do things in order to make India a better manufacturing destination so that it becomes a hub of manufacturing. The details on FDI inflow obviously will have to be given wherever the FDI is coming in, which includes these sectors where we have received FDI. And therefore, if it is being received in sectors which are trading and so on, we do have to declare it. But however, it is not to say that we will show only where there is an impact on directly on manufacturing. The information on FDI inflows is obviously into the sectors where the flows have come in. So it covers sectors which are not directly involved in manufacturing, but which still will have a bearing on manufacturing. And therefore, if we receive it for tourism or if we receive it for power and so on, we still have to state it. So we've stated it, and directly or indirectly, they're going to benefit Make in India. Thank you. Shri Anand Sharma. Sir, the Minister has given in a reply details of the initiatives that have been taken. They are initiatives that have been taken over the years because the government is a continuum, particularly to boost manufacturing and to make India an attractive destination for foreign investments. I am specifically drawing the attention of the Minister to part A and B of her reply, the total FDI equity inflows received in manufacturing sector, to which one of our honorable colleagues has just referred to, during last year, the details have been given. I would like the Minister to confirm or otherwise whether it is a fact or not that after the global economic and financial crisis, India remained the first 3 favored destination for foreign investors, and the FDI that was received in the previous years, because only 1 year reference is given by the Minister in a reply. I am referring to 2011, 12, 12, 13. In one year, it was 46.55 billion, which is much higher than the FDI received last year. And I am also drawing attention to the Annexure A, where it is said various achievements made under the Make in India project. And it is 14 Government of India services through the single window portal of EBIS. I would like the Minister to confirm whether it is true that the EBIS project was conceptualized by the National Institute of Smart Governance in 2009. It was launched as a pilot project, and the
Platform of e-biz for the common delivery of services and payment gate was done in 13 and 14. Thank you. So it is not under the Make in India program. Thank you. So I'm not going to be getting into details of what has happened today, yesterday, day after. The government is a continuum. We will answer every question that the honorable member wants to ask. But I would want to say specifically that the achievements listed here are certainly initiatives taken by this government, and we have periodically announced the steps taken. All right, the national manufacturing policy, doubling of it from 15% to 22, all that has been 25, have been announced earlier, and we are definitely following as a continuum. But what I would like to underline is specific announcement made about certain portals and specific announcement about launching of portals have been launched only after this government has come into place. So I think if the credit has to go for conceptualizing it earlier, we don't deny it. But the fact remains that it is getting implemented now. Thank you, Shri Naresh Agarwal. Please. If you find an inaccuracy in the answer, please raise it differently. Thank you. माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दो नारे आपके हैं। दोनों एक ही है, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। मानती हूँ, आपसे इंटरवीन कर रही हूँ, बीच में बात में आ रही हूँ। हमारी घोषणा एक ही है, मेक इन इंडिया। चलिए आप सवाल पूछिए। माननीय मंत्री जी, हम लोगों का कॉन्सेप्ट मेड इन इंडिया है, आपका कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए आपने जैसे कुछ राज्यों के नाम दिए हैं कि इन कुछ राज्यों के नाम आपने क्वेश्चन में दिए हैं कि इन राज्यों ने ये पहल करी, बाकी राज्यों के आपने नाम नहीं दिए, जबकि और राज्यों ने इससे भी ज़्यादा पहल करी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद विदेश गए, वहाँ से तमाम निवेश लेके आए, उत्तर प्रदेश में तमाम निवेश हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोई गाइडलाइन भेजी है कि राज्य सरकार उन गाइडलाइनों का पालन करें, और उसके लिए कोई टाइम लिमिट रखी है, या उस गाइडलाइन में क्या उन्होंने जरूरी किया है? Sir, I'd just like to respond that the names of states given and the information shared here is only partly the information. As and when we are receiving the information, we are collecting and putting it here. That does not mean that other states have not taken any information. बाकी सब राज्यों में भी बहुत सारे काम हो रही है, जहां हमें information मिल रही है उसको इधर कुल मिलाकर के कंपाइल करते हुए हम देते आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्टेट्स में कुछ कामकाज नहीं हो रही है, शायद हो रही है, हम कलेक्ट करने के बाद आपको शेयर भी करेंगे, वो एक विषय है। दूसरा, 98 पॉइंट्स के ऊपर स्टेट और सेंटर के आपस में बात होने के बाद 98 सच पॉइंट्स के ऊपर जून 30 के अंदर 2015 जून 30 के अंदर स्टेट्स में कामकाज होना है। उस 98 पॉइंट्स के ऊपर इनिशिएटिव्स भी लेना है। हर 98 पॉइंट को 30 जून में फिनिश करना ऐसे नहीं है, कुछ पहले भी कर सकते हैं, कुछ बाद में भी। टाइमलाइंस वेरी हो रही है हर एक पॉइंट के लिए। So it is not that the states have not been given a guideline or the information has not been shared with them. During the meeting in December 28th, when national level meeting happened in Vigyan Bhavan, along with states, the consultation was held, Chairman Sir, and 98 such points on which initiatives will have to be taken at the state level has been shared with them. Many of them are following it, and I'm very happy to report that states are cooperating, and all states are cooperating. We have just given a little example of what has happened. It doesn't mean that other states are not doing, but however, on the 98 points of initiatives which have to be taken so that there is a greater ease of doing business in the country, all states will have to complete on those 98 points by 30th June 2015. Thank you. Question 62. 62. Has the question been answered? Yes. Has the answer been given? Let the answer be given. माननीय सभापति महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। Yes. सभापति महोदय, आपके माध्यम से
मेरा पहला पूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि सेल की कोई भी दीर्घकालिक कार्यनीति नहीं बनाई गई है, लेकिन सेल अपने मौजूदा फेज आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना पर क्या तय लागत से अधिक खर्च कर दिया है? तो क्या किन किन कंपनियों को लागत से अधिक पैसा चुकाना पड़ा है? विशेषकर L&T कंपनी को कितना अधिक पैसा चुकाया गया है तथा विलंब एवं नुकसान किन किन कंपनियों तथा अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है और भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने जो प्रश्न किया है सेल के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का, यह बात सच है कि जब पिछले बार ये निर्णय हुआ था कि सेल अपना आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण करे, तो ये इनका पहला अवसर था और इसलिए इन्होंने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया, टेंडर इत्यादि किए और अनुभवहीनता के कारण बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो असफल हो जाने के कारण इन प्रक्रियाओं में विलंब भी हुआ है और निश्चित रूप से कुछ राशि भी बढ़ी है। उस मामले में सेल के बोर्ड ने भी समीक्षा की है और उसको संज्ञान लिया है। सरकार ने भी समीक्षा के दौरान इस बात को संज्ञान लिया है। आगे से इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का सेल ध्यान रखेगा। दूसरा प्रश्न। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि मौजूदा विस्तार योजना एवं आधुनिकीकरण के मौजूदा फेज के उपरांत क्या सेल अपने लक्ष्य उत्पादन 23.46 मिलियन टन प्रति वर्ष प्राप्त कर लिया है? यदि हाँ तो तत्वबंदी प्लांट के वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? और मौजूदा फेज के लिए सेल द्वारा किए गए कर्ज का ब्यौरा क्या है तथा ब्याज के रूप में प्रति वर्ष कितना रुपया चुकाना पड़ता है? माननीय सभापति महोदय, सेल ने जब अपनी आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की योजना ली तो इस पर लगभग 61,000 करोड़ रुपया खर्च होना था और 10,000 करोड़ रुपया वो माइंस को डेवलप करने के लिए खर्च होना था। सेल के राउरकेला स्टील प्लांट का विस्तारीकरण का काम पूरा हो गया है और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। बोकारो का काम पूरा हो गया है, ट्रायल चल रहा है। वर्णपुर का काम पूरा हो गया है, उसका ट्रायल चल रहा है। दुर्गापुर और भिलाई का काम थोड़ा सा शेष है जो सितंबर तक पूरा हो जाएगा और जब यह काम पूरा होगा तो निश्चित रूप से सेल जो आज 13 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का प्लांट है, उपक्रम है, वह 23 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का उपक्रम हो जाएगा। श्री तपन सेन। Sir, modernization in the steel plant, I think it is a continuous process. This continuing since long. My question is that the capacity is increasing, but at the same time, Minister must be knowing that the steel authority is facing, not only steel authority, but all the steel producers in the country are facing a serious problem which is giving rise because of the import, unrestricted import, and it is practically a dumping, and which they are facing lower NSR, and that is going to impact their productivity, which they are planning to increase by the continuous process of modernization. So my question, Honorable Commerce Minister is also here incidentally, whether we have been brought to this notice to the Steel Ministry and Steel Authority, whether the continuing import, whether government is going to take any concrete step to contain the continuing import, which is targeted to be zero duty import by 2016 as per an international arrangement treaty between the regional countries. So whether government is seriously planning on that, otherwise this continuous investment ultimately will
turn unproductive, and it will create serious pressure on the entire economy. So whether government is seriously considering on it, and in their modernization program, the Durgapur steel plant, I think, needs much more investment. It is only partial modernization has taken place, by which its full productive capacity cannot be harnessed. So whether the Honorable Minister will consider particularly augmenting the allocations and plan in modernizing the Durgapur steel plant. Thank you. माननीय सभापति महोदय, तपन सेन जी की जो चिंता है वो निश्चित रूप से बड़ी वाजिब है, और इस समय स्टील का आयात जो बढ़ रहा है उससे सभी चिंतित हैं। लगभग 9 मिलियन टन आयात हो रहा है, 5 मिलियन टन का हम निर्यात कर रहे हैं। इस्पात नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। विश्व के अनेक देशों से जो हमारे करार हैं वो भी इसके कारण हैं। चीन जैसे देशों में उनकी उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई है और उसके कारण भी वो हमारे बाज़ार को देख रहे हैं। लेकिन जो सदस्य की चिंता है, सरकार ने उससे संज्ञान लिया है और हम वित्त मंत्रालय से इस विषय में चर्चा में हैं, और मुझे लगता है कि इस संकट से हम जल्दी उभरेंगे। जहाँ तक दुर्गापुर स्टील प्लांट का सवाल है, तो निश्चित रूप से प्रथम चरण में उसमें आंशिक इन्वेस्टमेंट हुआ है। जो दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है उसमें विस्तार से उसका आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण हाथ में लिया जाएगा। श्रीमती गुंडू सुधारानी। Thank you, sir. Sir, schedule 13th schedule to AP Reorganization Act, according to that, mandates that SAIL should establish an integrated steel plant in Khammam district in Telangana region, sir. Sir, we have iron ore mines in Bayaram in Khammam district, so setting up of iron steel plant is very easy. So I would like to know from Honorable Minister what SAIL has so far done to set up steel plant in Khammam district of Telangana, whether any feasibility report has been prepared and mandated to be done in 6 months. If so, the details of the report. Thank you, sir. Very good. माननीय सभापति महोदय, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था, उस समय सेल को एक मैंडेट दिया गया था कि सेल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों क्षेत्रों में स्टील प्लांट बैठाए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करें। वो अध्ययन सेल ने किया है और उस मामले में जो संभावनाएं दिखनी चाहिए, उन संभावना में निश्चित रूप से कमी दिखाई दे रही है। मैं मुख्यमंत्री जी मिलने आए थे तो हम लोगों ने उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेल और हमारी स्टील मिनिस्ट्री, इन 3 के अधिकारियों की एक टीम बनाई है। वो दोबारा से उसका परीक्षण कर रही है। परीक्षण के निष्कर्ष आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्रीमती कानीमोजी। So, our reply says that there's a target production of 50 million tons by the year of 2025. I'd like to know whether there are steps being taken by SAIL for enhancing the production of capacity of the Salem steel plant and setting up of captive thermal power plant for it. माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसे कि पूर्व में कहा कि जो सेल का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का काम चल रहा है, उसमें सितंबर में पूरा होगा वो सभी प्लांटों का। तो सेल की जो उत्पादन क्षमता है वो 13 मिलियन टन से बढ़कर 23 मिलियन टन हो जाएगी। 2025 तक हम लोग 50 मिलियन टन की क्षमता करें, ये निश्चित रूप से सेल की दृष्टि है और इस दृष्टि में वो दूसरे और तीसरे चरण का एक्सपांसन करने जा रहे हैं। उसमें सेलम भी शामिल है। थैंक यू। क्वेश्चन 63। I thought he mentioned that. कहा सेलम स्टील प्लांट उसमें शामिल है। Question 63. Question 63. Sir, the concerned railway 1915 से चल रही थी 1987 तक,
1987, from 1915 to 1987, रानकी वाव जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ढूंढ के निकाला 1960 में। 1960 से 1987 तक 27 साल तक ये रेलवे चल रही थी और कोई डैमेज हुआ नहीं है आर्कियोलॉजी रानकी वाव को। बाद में कन्वर्जन करना था, मीटर गेज से ब्रॉड गेज के लिए करना था। तो एज फार एज रेलवे का मत है, रेलवे ऐसा बोलती है कि गेज कन्वर्जन इज मोर लाइक अ रिपेयर टू अ ट्रैक विद बेटर टेक्नोलॉजी। ये नया कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं, तो मैं और कुछ डैमेज भी नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात स्टेट उन्होंने भी एक रिपोर्ट दिया है कि इससे मॉन्यूमेंट को कोई डैमेज नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना को उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो नया एक्ट आर्कियोलॉजिकल एक्ट 2010 में अमेंड हुआ, उसकी सेक्शन 6(3) in case where the central government or Director General, as the case may be, is satisfied that it is necessary or expedient for carrying out such public work or any project essential to the public, ये अथॉरिटी इन्वोक करके 1987 से रेलवे लाइन बंद है। साहब आप विचार सकते हैं, तो गुजरात के लोग हैं, शांत है, कुछ करते नहीं है, तो उसको पनिश क्यों किया जा रहा है? और मैं आपसे प्रार्थना मिनिस्टर को पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में लोकल लेवल पे साइट पे आके और दोनों डिपार्टमेंट के बोला के कुछ दिन तो गुजरात में गुजारो आके, तो कुछ होगा, सॉल्यूशन निकलेगा। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का कद्र करते हुए और उन्हें शुभकामना भी देता हूं कि रानी की वाव को जून 2014 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। जो 2 साइट्स हमारी इंक्लूड की गई हैं उसमें नेशनल हिमालयन पार्क और रानी की वाव भी है। रानी की वाव की बाउंड्री से मात्र 67 मीटर पर यह रेलवे लाइन है और उसकी बाउंड्री से मात्र 13 मीटर पर यह रेलवे ट्रैक है। 2010 में जो 1958 का हमारा मासरा एक्ट था, उसमें जो बदलाव लाए गए, उसमें 100 मीटर और 300 मीटर की सीमाएं रखी गई कि किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से या नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट से 100 मीटर में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की जा सकती जिससे कि उस मॉन्यूमेंट को नुकसान होने का खतरा हो, और 300 मीटर की परिधि भी निश्चित की गई। इस विषय को संज्ञान लेते हुए और इसके राष्ट्रीय महत्व को और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को मैं तो अब कहूंगा लेते हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे विभाग ने नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी में जो रेलवे विभाग की तरफ से एक आपत्ति आई थी और एक एनओसी के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, उस पर और रेलवे मंत्रालयों के साथ और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की सीरियल्स मीटिंग्स के बाद यह तय किया गया है कि अब रेलवे ने जो नया रूट दिया है वो 102.5 मीटर पर दिया है, जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी को भी स्वीकार है और हमारे अमासरा एक्ट का भी अवहेलना नहीं होती। तो मैं माननीय संसद को शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं कि उनके उठाए गए प्रश्न पर अभी फैसला ले लिया गया है और जिससे रेलवे मंत्रालय भी संतुष्ट है और हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे विभाग भी संतुष्ट है। ये अनुमति दे दी गई है आज से 7 दिन पहले। थैंक यू। दूसरा प्रश्न साहब, आपके रिप्लाई में आपने बचा कुछ नहीं है, फिर भी पूछना तो पड़ता है, दूसरा सप्लीमेंट्री का मेरा राइट है, इसलिए पूछना पड़ता है। साहब, ये कितने दिन में हम आपसे आशा रखते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट लेके जल्दी से जल्दी रेल लाइन चालू हो जाए, आपके हाथ से ही उसका उद्घाटन भी हो और खात्ममुहूर्त भी हो, ऐसे हम चाहते हैं, तो क्या आप करेंगे? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ सजेशन। थैंक यू। थैंक यू। श्री सुखेंदु शेखर रॉय। Since the Honourable Minister has already replied that Rani Ki Vav at Patan, Gujarat, is not only a national monument, is a monument of national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act. This has also been included in the list of World Heritage Sites under the UNESCO program. Now, the National Monuments Authority, they have granted NOC subject to certain conditions to the Western Railway for construction of railway line on the abandoned meter gauge railway line. Now my question is that whether, as the Honourable Minister has stated that
Now in the revised plan, it shows that the monument is 102.5 meter away. The railway line is away from the monument. My question is whether the Archaeological Survey of India or the National Monuments Authority have made a ground inspection to verify the veracity of the statement made by the Western Railway, whether it is 102.5 or it violates the provisions of the Act which restricts any construction within the protected area. That is my question. Thank you. Sir, after inclusion of in World Heritage Sites, now we are bound by international laws also to report of any of the changes or activities to the WCN also and UNESCO also. And as per conditions by World Heritage Center that no development proposal in site or buffer to affects the outstanding universal value. And second thing, any major development infrastructure proposal heritage impact assessment to be submitted to UNESCO World Heritage Site. A National Monument Authority meeting has taken place, and on 10th of April, after assessment and a site visit by the our National Monument Authority, this clearance has been given after verification at the site and after the revised plan of the railways. Thank you, Shri Lal Singh Vadodia. माननीय सभापति जी, जैसे पाटन की वाव की बात है, ऐसे ही हमारे पंचमहाल जिले में टूवा स्टेशन है। उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर ठंडा और गर्म पानी के कुंड वहाँ है। तो जो रेलवे लाइन की स्पीड बढ़ जाने के कारण वहाँ जो हजारों यात्री वो देखने के लिए आते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिपार्टमेंट कुछ करेगा क्या? माननीय सांसद ने जो मेरे संज्ञान में लाया है, इस विषय पर अगर कोई ऐसी विशेष सूचना माननीय सांसद के पास है तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी इस पर अपना संज्ञान लेकर और जांच कराकर सांसद जी को अवगत कराएगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 64। Questioner not present. Yes, sir. Dr. Mangaekar, let the answer be given first. No, let the answer be given. Thank you. Dr. Mangaekar. Sir, thank you very much. I congratulate Dr. Sima for raising this question. Sir, this Unorganized Worker Social Security Act is one of the landmarks legislation passed by the Congress-led UPA government. And I must thank Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister, for leaving with this Labour Department in the Planning Commission, and therefore I was grossly involved in this. Sir, the question specifically is whether the implementation of this act has failed and also various programs could not be implemented because of inadequate delivery of the various schemes. The question is not about the salient features of the act. The question is about, due to the fragmentation of the implementation and involvement of the various agencies in the implementation, act is not properly implemented. That's why, sir, my supplementary is, what steps are being taken to ensure that the various provisions of the act intending to secure the welfare of the unorganized sector workers, who are 92% of the total working force in the country, steps are being taken by the government. Thank you. Thank you. Sir. Answer. It has nothing to do with the question. The question is very specific. The answer is like from an annual report. It's impossible to make sense of the answer. I think, sir, you should please take note of the fact that there is complete dissonance between the answer and the question. Sir, The Honourable Minister, please clarify. Sir, first of all, the answer itself, the question itself is, there are in two portions of the question. Because the implementation of Unorganized Workers Social Security Act, and they are asking the fail to provide the employment and security. Because the very honourable member who raised the question, in the Act itself, in the 2008 Act itself, the silent features of this Act itself has clearly mentioned
life and disability cover, number 1, health and maternity benefit, number 2, and number 3 is old age pension, and any other benefit may be determined by the central government by the different schemes. So this is the Social Security Act. But the question asked is, other part of the question I will tell regarding this implementation. Regarding the implementation, already I appreciate the concern of the member. He has also told that this is a laudable one. This is a really unique one. Sir, I submit, because the very unorganized sector, as he has mentioned, which constitute 93% of the workforce. For this Act continues to process. And we are committed to welfare of these people. For that reason only, we have started. What steps he said, implementation part is coordination between different ministries, Rural Development Ministry, Labour Ministry, Health Ministry, and also Finance Ministry. There are other ministries also there which formulated the schemes regarding the unorganized sector. That the implementation is process continuous, regularly, secretary level meetings are taking place, and I myself wrote letter to the chief ministers and I have called the ministers of labour and all these people. But our ministry, our government, sir, I submit, our main focus is unorganized workers. Unorganized workers, as organized workers, they are getting social security benefits. For that also, this unorganized sector also, we are committed for it to give social security benefit to the unorganized workers. That is the only thing, sir. But our member who has raised the answer itself is wrong. Answer itself is correct. Both the ways we have given the answer. Shri Tarun Vijay. अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस देश में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की जितनी दुर्दशा और जितनी दुर्गति है, शायद दुनिया में ऐसी दुर्गति किसी की नहीं है। Please ask the supplementary question. Yes, sir. मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से यही प्रश्न है कि जो प्रश्न पूछा गया था वह था कि विभिन्न मंत्रालयों में तारतम्य नहीं है और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से उनको न तो सुरक्षा मिलती है नौकरी की, काम धंधे की, न ही उनको एक्सीडेंट या हेल्थ रिस्क से सुरक्षा मिलती है। अब सर, इसमें 6 मंत्रालयों के नाम हैं। प्रश्न ये था कि इसमें कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो सकता ताकि कामगारों को सुविधा मिले। अब 6 मंत्रालय में वो कहां धक्के खाएगा असंगठित कर्मचारी। और आपने लिखा है कि 42.42 लाख सब्सक्राइबर्स मिले हैं, जो कि नगण्य संख्या है। मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हेल्थ और यह नेशनल पेंशन स्कीम मिले, कितने प्रतिशत को? एक्स नंबर है उनकी संख्या, उसमें से इतने लोगों को आपने दी है। और ये रिस्क तो बढ़ गया जब आप कहते हैं कि आप 6 मंत्रालय में जाइए। प्रश्न ये था कि 6 मंत्रालय में न जाना पड़े, तो कैसे नहीं जाना पड़े, हमें वो बताइए। थैंक यू सर। Very good question you have raised, sir. This regarding the different schemes, we are launching a nationwide campaign for registration of unorganized workers. Unorganized workers with the smart card, and with the smart card linked with the Aadhaar and also bank account and mobile number. And whatever the schemes which I have mentioned, Rashtriya Swasthya Bima Yojana, and number 2 is Aam Aadmi Bima Yojana, number 3 is old age pension. These 3 schemes, they will be converged into smart card, and the smart card will be provided to the unorganized workers in a phased manner. This is the, and other things also. Recently, our Honorable Finance Minister, in his budget slip also he has mentioned, our government is committed because Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, number 1. Number 2, Atal Pension Yojana. Number 3,
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana. They can also avail of this. But regarding the smart card, and the registration, all the state governments who are taking the cooperation and doing for this work, sir. Sir, I seek your protection, sir. I asked that what is the percentage? Thank you. What is the percentage? Thank you. Percentage, which I will give in later, I will give percentage. The information will be conveyed to the Honorable Member Shri Sharad Yadav. Please sit down. Please sit down. No, this is not your turn. Please sit down. श्रीमान, मंत्री जी को कितना ही घेर लो, और यही नहीं है कोई मंत्री हो, ये जो योजना बनी है, जो तरुण विजय जी कह रहे थे और कांग्रेस की तरफ से मुनगेकर जी तो ये प्लानिंग कमीशन में थे, बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले आदमी। श्रीमान, मैं कहना चाहता हूं कि नेता सदन है नहीं यहाँ, ये सवाल पूछ लीजिए। सवाल ही पूछ रहा हूँ। यदि आपसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हम तो कभी कभी खड़े होते हैं। प्लीज कंटिन्यू। यानी नहीं तो जो 68 बरस से जो असंगठित मजदूर है, वो उसकी त्रासदी को बयान करने की जरूरत नहीं है। ये ठेकेदारी चली हुई है आजकल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ जितने टॉयलेट हैं उनमें ठेकेदारों ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे हुए हैं। हाँ, या तो आप मालिक हैं, यदि आपसे नहीं कहा जाए, आपके सामने शिकायत नहीं की जाए, इस सवाल का एक ही हल है, नेता सदन होते तो तत्काल यदि आपके जितने वादे हैं पूरा करना है, तो ये है असली इस देश की कमजोरी। इस देश की दुनिया में जो सम्मान इज्जत होना चाहिए, वो कोई बैठ जाए यहाँ। शरद जी, कोई बैठ जाए सर। सप्लीमेंट्री सवाल पूछ लीजिए। सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मैं, यानी सप्लीमेंट्री है। और ये जो मंत्री है इसको इस तरफ के लोग काफी घेर रहे हैं, ये भी इस पर रहे और मैं भी इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ। इससे ज्यादा डिफंक्ट डिपार्टमेंट कोई नहीं है, खत्म कर दिया इसको, ये विचारों को दे दिया। ये आपसे मेरा निवेदन है, होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आप तत्काल इसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाइए और एक मिनिस्ट्री इसके लिए अलग बनाइए, और तब कहीं रास्ता बन सकता है कि कुछ इनके रास्ता इनका निकले। 5-6 में पढ़ करके नहीं, इसमें जितने डिपार्टमेंट हैं श्रीमान, इतने डिपार्टमेंट में यानी कैसा घपला है, कैसे नहीं, आप इसको क्यों टाल रहे हैं? आप डिबेट में ये सवाल उठाइए। डिबेट नहीं, इसको टालने की नहीं। हाँ, नहीं, कमेंट्री नहीं, ये बहस है। यदि आप इसको टॉक आउट करना चाहते हैं, नहीं इसको चर्चा को ऐसे ही निकालना चाहते हैं, निकालिए। लेकिन मैं पक्का और यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में मंत्री जी एक बात बताइए कि आप जाकर के हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कहिए कि ये मामले को एक मंत्रालय दे देंगे तो रास्ता जो है वो उनके वादों में से कई चीजें वादे जो है निकलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस पे आपका क्या है कि आप इस बात की यानी जाकर के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के कहें कि आपके बस का नहीं है, और कोई आपके आदमी के बस का ही नहीं, ये किसी मंत्री के बस का ही नहीं है। और क्यों इनको जबरदस्ती तंग किया जा रहा? इसलिए बताओ, सही बोलो यार। नॉट ए क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू। अब आपने अपना सुझाव दे दिया। आप जो है यदि प्रोटेक्शन हमारा नहीं करेंगे तो किसी सदस्य का क्या करेंगे?
अरे ऐसा मत आपको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे आदमी है, वो जवाब देंगे। वो अच्छे आदमी, यदि मान लो आप उत्साह से पूछ। अच्छा, आप सुन तो लीजिए उनकी बात। हाँ नहीं, ठीक है। जी। अगर आपने हमारे सवाल को एकदम डाइल्यूट कर दिया। सर मैंने प्लीज हमारे श्रीमान शरद यादव जी का जो मैं प्रश्न समझा हूँ, उनका तकलीफ भी मैंने समझा हूँ, लेकिन इसमें जो अनारने सेक्टर है, इसको बहुत सालों से, आप जैसे बताया 60 सालों से इसको जो है अनारने सेक्टर को जितना सोशल सिक्योरिटी देना चाहिए उतना नहीं दिया गया है। उसी के तहत जो है हमारी सरकार आने के बाद, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी जो है आने के बाद, इसके ऊपर सेपरेट जो है मीटिंग भी लगाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में जो पूछा गया, इसमें RSBO स्कीम में हमारे जो अभी तक जो बेनिफिशियरीज है 3.85 करोड़, आम आदमी बीमा योजना 8 करोड़ फैमिलीज एंड ओल्ड एज पेंशन 2 करोड़। मैं केवल ये तीनों का बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले सूचित दिया हूँ 10 जो है मंत्रालयों का मैंने सूचित दिया हूँ, और भी नए आ रहे। तो इसीलिए ज़्यादा जो है सोशल सिक्योरिटी कवरेज देने के लिए जो असंगठित मजदूर है, जिनको कोई ऐसी कानून नहीं है, जो मिनिमम वेज एक्ट के बारे में, ऐसे बहुत से एक्ट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बहुत से एक्ट है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, असंगठित क्षेत्र के बारे में कुछ एक्ट भी बराबर नहीं है। तो इसलिए हम इसको पहले सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है मजबूत में बनाया, और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप सभी पार्लियामेंट मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों का सहकार मुझे चाहिए। थैंक यू। क्वेश्चन प्लीज। मैं पूर्वक पूछ करता हूँ। मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो मामला है वो इतने दूर तक आ गया है कि ये इस पार्लियामेंट के अंदर हम जहाँ वॉशरूम में जाते हैं, तो मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं उनकी जरा पता लगा लीजिए कितनी तनख्वाह उनकी है, कितनी तनख्वाह उनकी है। हम कहाँ देश ठीक करेंगे, हमारे घर में ही अंधेरा है। यानी ये जो वॉशरूम है सर, ये वॉशरूम में जो बैठे लोग कितने रुपए मिल रहे हैं उनको, और ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है? ये तो मिनिस्टर जो है वो 2 मिनट में इसको ठीक कर सकते हैं। आप स्वच्छ भारत कर रहे हैं, और ये टॉयलेट में बैठे हुए जो नौजवान हैं वो उनकी देखिए तो क्या हालत है। वो हमसे बात नहीं कर सकते, नमस्कार क्यों नहीं कर सकते? क्या ह्यूमन खेल है? तो ये तो इसको देखिए ना आप। मैंने जो पूछा है वो इसे it's a valid point, but it has to be raised separately, not here. Question 65, please. 65. Yes. Let the answer be given. Answer to the question 65 is laid on the table of the House. जी. Thank you, Chairman साहब. आफादी समाधि एक ऐसा सारी दुनिया के अंदर एक ऐसा तूफान बर्पा करता है, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम है वो काफी अहम काम है, क्योंकि आप अभी जो हाल में तूफान आया, भूकंप के झटके हुए, बाजू की मुल्क नेपाल के साथ हमारी रियासत के भी 70 से ज़्यादा जाने, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, वेस्ट बंगाल में हो, कई ऐसे जाने गई हैं। हमने टीवी के जरिए और अखबारों के जरिए मैंने जानकारी हासिल की है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम करने का जो हल्का महदूद है, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जो नुकसान रियासतों में हुआ है, रिपोर्ट के अंदर आपने जवाब के अंदर कहा है कि नुकसान का जो अंदाजा है वो रियासतें बर्दाश्त करेगी और रियासतों की इनकी जिम्मेदारी दी गई है। सवाल पूछिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अभी जो हाल में जो भूकंप के जरिए जो नुकसान हुए हैं रियासतों में, उसका क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की तरीके से आपके पास कोई रिपोर्ट आई है
अगर रिपोर्ट आई है silence. तो वो हाउस के अंदर वो पेश किया जाए। मैं मरकजी सरकार से जानना चाहता हूँ। Silence, please. सर, जैसे सवाल Mr. सवाल Rao. आया था उसमें Please. Please. जो मुख्य सवाल माननीय सदस्य ने पूछा था कि टोटल असेसमेंट भारत में इस तरह का प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है उसका टोटल असेसमेंट क्या है, तो हमारे भारत सरकार का तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसका पूरा असेसमेंट किया जाए। यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया जिसमें $9.7 बिलियन एनुअली नुकसान का एक दिया, उसको हमने खारिज भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, क्योंकि वो हमारे सरकारी दस्तावेज नहीं है। फिर भी जो हमारे पास जो प्रावधान है उसका मुताबिक जो स्टेट डिजास्टर फंड में फिक्स अमाउंट एलोकेट किया जाता है, उसका रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के माध्यम से आता है। मैं सदन को जानकारी दूंगा कि जो अगले 5 वर्ष का जो टोटल एलोकेशन है फॉर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड 61,220 करोड़ जो है वो एलोकेटेड है। इसके अलावा जैसे राज्य सरकार जो फ्लड डैमेजमेंट असेसमेंट जो रिपोर्ट आता है मेमोरेंडम के जरिए से, उसको एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है उससे जो स्टेट डिजास्टर फंड में नहीं जुड़ता है उसका भरपाई जो है भारत सरकार की ओर से उसका दिया जाता है। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, वजीर मौसूफ ने ये बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर सफिशिएंट फंड है, लेकिन हमें आज तक भी और गुजरे 4 दिनों के अंदर ये देखने में महसूस हुआ कि डिजास्टर मैनेजमेंट को जिस तरीके से हमारे मुल्क में या बाहर के मुल्क में भेज के काम लिया जा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी इस आफादी समाधि से निपटने के लिए काफ़ी सफिशिएंट नहीं है। तो मैं मरकजी सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास सफिशिएंट फंड है तो नई टेक्नोलॉजी जो दिगर ममालिक में इस्तेमाल होती है, उस टेक्नोलॉजी को लाकर हम ये आफादी समाधि से निपटने, जानों के नुकसान को बचाने, इस आवाम की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या आप नई टेक्नोलॉजी के इजाद को हिंदुस्तान में लाएंगे? बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, इसमें टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा सहारा होता ही है, उसके बिना पूरा ऑपरेशन जो है सक्सेस नहीं हो पाता है। इसमें मैं माननीय सदस्य जी के आपके माध्यम से हाउस को जानकारी दूंगा कि जो अभी भारत का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी इजाफा हुआ है, इसका सराहना भी किया जाता है। और हमारा एनडीआरएफ का जो टीम है वो 10,000 का स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो 24 घंटा तैयार रहता है। और उसके साथ जो इक्विपमेंट्स है, सैटेलाइट का जरिए से जो हम मदद लेना, और उसके अलावा बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है जो मैं डिटेल से यहाँ नहीं बता सकता हूँ, चर्चा आएंगे तो उसका मैं बता सकता हूँ। इसके माध्यम से हम ये समझता है कि हमारा जो ताकत अभी काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम मानते हैं ये काफ़ी नहीं है। इसलिए अभी जो नेपाल में घटना हुआ है और हमारे देश के खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इफेक्ट हुआ है, उसमें हमने अपना देश के लिए तो हमने कर ही रहे हैं, साथ साथ नेपाल में भी जाके बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ताकत वहाँ में भी हमने झोंका है। इसके माध्यम से मैं हाउस को आश्वासन करना चाहता हूँ कि हमारा भारत जो है एक लीडिंग नेशन, डिजास्टर रेस्पॉन्स में एक लीडिंग नेशन के रूप में उभर के आया है, और भी आगे हम लोग काम करेंगे। थैंक यू श्री प्रेमचंद गुप्ता। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि $9.8 बिलियन का एनुअल लॉस नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हिंदुस्तान में होता है। सरकार ने कहा कि न हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और न डिनाई करते हैं, ये ठीक है, लेकिन मान्यवर सच्चाई ये है कि ये नुकसान इतना नहीं होकर इससे बहुत ज़्यादा है। हर साल जो बिहार के उत्तर बिहार में जो कोसी में फ्लड आती है सर, उसमें करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं, लाखों हेक्टर जमीनें जो है वो बर्बाद हो जाती है। माननीय गृह मंत्री जी बिहार से विशेष संबंध रखते हैं, इनका वहाँ समझाना भी है। आप तो ज़्यादा जानते हैं सर कितना नुकसान होता है जो अब नेपाल में हुआ। सवाल पूछिए। मैं बधाई देता हूं कि भाई सरकार ने, भारत गवर्नमेंट ने, पूरे देश ने मिलके और वहां पर मदद पहुंचाई। लेकिन मान्यवर, अगर ये भूकंप पहाड़ों के बदले अगर
मैं नहीं चाहता कि विश नहीं करता ऐसा हो, अगर शहरों में आ जाए तो क्या स्थिति होगी, क्या हम कुछ बचा पाएंगे? जो नेशनल डिजास्टर की जो प्लीज स्टिक टू द क्वेश्चन एंड द आंसर। सवाल ये है कि जो आपने कहा कि 58% देश का हिस्सा प्रोन टू अर्थक्वेक है, तो इसके लिए आपने क्या सोच विचार किया, क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है? फ्लड्स को बचाने के लिए, फ्लड से बचने के लिए क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है? आपके पास फंड्स है या आपके पास फंड्स नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है। यूएन ने क्या रिपोर्ट दी, नहीं दी, इसका कोई मायने नहीं है। आपने क्या किया, ये हाउस इस चीज को जानना चाहता है। सभापति महोदय जी, जैसे इस बात का दो हिस्सा में हम देख सकते हैं। एक जो लॉस का इन्होंने कहा कि ये तो हम भी मानते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है उसका बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 12 आइटम्स जो हमने रिकॉग्नाइज किया है, उसको एक्सेप्ट किया है, उसी के माध्यम से ही हम एक ऑफिशियल फिगर में आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, तो असेसमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के मुताबिक जो आपने मुद्दा उठाया है कि तैयारी किस तरह से रहना चाहिए और उसका जो जरूरी पड़ेगा तो समय पर कैसे पहुंचा जा सके, ये बात सही है। इसके लिए अभी जैसे मैंने माननीय सदस्य को जानकारी दिया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मीटिंग 3 बजे बैठक हुआ और 4 बजे 1 घंटे के अंदर में हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गया। आप समझ सकते हैं कि 20-30 मिनट के अंदर में हमारा एयरक्राफ्ट तैयार होना और टेक ऑफ करके वहां निकलना, इतना जल्दी में काम होना, ये चीज दर्शाता है कि सरकार कितना सेंसिटिव और इस मामले के जो घटना होते हैं उसमें कितना रिस्पॉन्सिव हमारा एक्शन रहा है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इसमें और बदलाव या इस इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मिल करके करना चाहिए इसको। थैंक यू श्री अनिल देसाई। Chairman sir, on the basis of the reports on vulnerability atlas of India, which says that India is vulnerable to various types of disasters and 58.6 of its land is prone to earthquake. So my question to the Honorable Minister is, Ratnagiri in Maharashtra is the region which falls under seismic zone 4, which is extremely prone to earthquake, and Jaitapur nuclear power plant is scheduled to come there. My question to the minister is whether the government will reconsider its decision, considering the Ratnagiri district itself is prone to the attack, prone to the earthquake, and seismic zone 4 is extremely dangerous. Does this relate to this question and answer? So reconsidering. No, you can raise this question separately. Disaster management and what things are planned by the government. It's a valid question, but please raise it separately. Yeah, it is related to that. Because when the disasters take place, I'm afraid not. Please read the question. We do go for the. Please read the question. For minimizing or mitigating the losses. Please. Here, if anything disasters takes place, instead of Mr. prevention Desai, is better than your cure. supplementary has to be on the question. Can government shift, think of don't shifting take the up precious place, time, please. shifting the place Shrimati of Thakur. Jaitapur nuclear plant, please. सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सर्वे करके भेजते हैं, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये एलोकेशन ऑफ फंड्स करते हैं और जैसे इन्होंने कहा कि हमने हर स्टेट्स को दिया हुआ और फिर जैसे सर्वे आता और पैसा देते हैं, तो किस आधार पे वो पैसा अलॉट करते हैं, किस चीज को, किस क्राइटेरिया को वो ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी हैं, जियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, किस चीज को ध्यान में रखकर ये लोग पैसा देते हैं। जैसे अभी बता रहे थे कि हिमाचल या कई एरिया सेस्मिक जोन में आ रहे हैं, 5th में आ रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं और बाढ़ें आती हैं और उनका जो तूफान आते हैं उनका भी पहले से कह दिया जाता है कि वहां आने वाला है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आधार है पैसा देने का, फंड्स देने का? आधार तो सभापति जी मैंने पहले ही कह दिया कि हमारे पास जो 12 आइटम्स है
वो मैं जल्दी से जल्दी बता देता हूँ हाउस का जानकारी के लिए। एवलांची, साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉट, अर्थक्वेक, सुनामी, फायर, फ्लड, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, पेस्ट अटैक, कोल्ड वेव, फ्रॉस्ट, ये जो 12 आइटम है जिसको हम रिलीफ के तौर पर हम देते हैं। बाकी जो उसके अलावा जो मैंने आपको जानकारी पहले भी दिया कि एक्स्ट्रा अगर वहाँ पे कोई रिकंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होता है, रिहेबिलिटेशन के लिए अलग से होता है, उसके लिए तो मिल करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के ही करता है। लेकिन एक गाइडलाइन तय किया हुआ है, इसके लिए मैंने ये कहा कि गाइडलाइन से हम प्रोजेक्शन करते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर जो हर राज्य का एक प्रोजेक्शन आया है 2014-15 का 17,048 करोड़ का मेमोरेंडम प्रोजेक्शन आता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें अगर वो आइटम्स में नहीं आता है तो वो उसका मुआवजा जो है वो नहीं मिलता, उसका अलग प्रावधान किया जाता है। थैंक यू। क्वेश्चन 66 जो ऊपर रखा गया। सर, माननीय मंत्री जी ने आंसर किया है, आंसर जो उत्तर दिया है उत्तर का अनुसार मैं आश्चर्यित हो रहा हूँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात, कर्नाटका, वो जो राज्य है सर, केंद्र में जो सरकार है, राज्यों में वो सरकार है, इतने मर्डर जितना हत्या हुआ है ट्राइबल का महिला का ऊपर, ट्राइबल महिला का ऊपर इतना भी रेप हुआ है, इसका कारण क्या है, किस लिए हो रहा है? और जो रिपोर्ट आया है मिनिस्टर का रिपोर्ट अनुसार वो कितना सारे केस कोर्ट में है और कन्विक्शन कितना हुआ है, वो जो परिवार जो है परिवार को कितना मुआवजा दिया है? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन जो है मेरा मिनिस्ट्री का मैंडेट में पूरा नहीं आता है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में से हम लोग ट्राइबल के ऊपर में कितना अटैक साल भर में हुआ है उसका फिगर को हम लेके आए हैं। मान्यवर सदस्य ने जो कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात ये स्टेट में ट्राइबल का संख्या ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है यहाँ का अटैक का संख्या ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ऐसा आम तौर पे देखा जाए तो बाकी लोगों के ऊपर में जितना अटैक हो रहा है उसके हिसाब से ट्राइबल के ऊपर में भी उसी रेंज में ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। दूसरा प्रश्न सर, मेरा क्वेश्चन जो था उत्तर तो ये नहीं आया। मेरा क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये था, जब कितना कन्विक्शन हुआ है इस केस पर, रिपोर्ट आपने दिया है, आपका रिपोर्ट अनुसार मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको किया, आपने उत्तर नहीं दिया। नेशनल क्राइम ब्यूरो हो और जो हो, आपने उत्तर दिया। किस लिए हो रहा है? जमीन के लिए हो रहा है, उसके जमीन छीन ले रहा है, इसके लिए हो रहा है? किसके लिए इतना मर्डर हो रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। किसके लिए इतना रेप हो रहा है? वो ट्राइबल का ऊपर, एब्सोल्युटली ट्राइबल। थैंक यू सर। कितना केस पेंडिंग है और कितना क्या है, ये स्टैटिस्टिक मैंने लिखित में पीछे कलेक्शन करके दे दूंगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। बाकी ये जो ट्राइबल के ऊपर में जो अटैक हो रहा है उसका बहुत सारे कारण है। जैसा समाज में बाकी लोगों में जैसा अटैक हो रहा है उसमें ज़मीन को लेके है, आपस में झगड़ा के कारण है, इस टाइप का है। स्पेसिफिक एथनिक क्लास बहुत कम है और त्रिपुरा में खास करके रियांग जो डिस्प्लेस होके आपका क्षेत्र में आके रहे हैं ये है, तो ये आपस का कम्युनिटी में कभी कभी झगड़ा होता है और इसमें त्रिपुरा, आसाम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज़्यादा है। ये एक टाइप का ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एथनिक क्लास नहीं, आप एथनिक रिपोर्ट, एथनिक क्लास जो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, बाकी हिस्सा में इंडिया का वैसा नहीं है। और जो डिटेल में कितना केस पेंडिंग है क्या है उसको मैं लिखित में उत्तर दे दूंगा। दे देंगे आप, ठीक है। श्री हरिप्रसाद। The reply from the minister, it's a sad affair, sir.
If you go through the record, sir, the maximum rapes have taken place in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. These are all the tribal people. They are the vulnerable for all these atrocities. I don't know what action the government would take, because the Prime Minister assured before the elections that the rapes on, especially the atrocities on women, would be stopped. Whether those Achhe would come or not. The question hour is over. The House is adjourned till 2 p.m. Thank you.